السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پتی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ 42% تحفظات پر سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ سے بھی راحت کی امید۔ ابھیشیک منو سنگھوی سے ہائی کورٹ میں دلائل پیش کرنے کی درخواست، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس، چہار شنبے کو سماعت۔ کانگریس کے 2 وزراء میں ٹھن گئی، پونم پربھاکر نے لکشمن کو بیل کہا۔ مسئلے کو سلجھانے PCC صدر کی مساعی، دلت قائدین کے ساتھ کل اجلاس۔ RTC شرحوں میں اضافے کے خلاف BRS کے احتجاج کا اعلان۔ 9 اکتوبر کو چلو بس بھون پروگرام، T سرینیواس یادو کی پریس کانفرنس۔ گھر بھراونی کی تقریب میں ڈیکوریشن لائٹس کے تاروں کی زد میں آ کر 8 سالہ بچی فوت، خوشی کا مقام ماتم میں بدل گیا۔
और 4 दिनों से लापता नौजवान की ओयो कैंपस में मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने बीसी रिजर्वेशन के मामले को विकार का मसला बना लिया है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत हर लम्हा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। मंगल की शाम 4:30 बजे वज़ीर आला कैंप ऑफिस में खुसूसी इजलास में बीसी रिजर्वेशन केस से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, ऑल इंडिया कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, पीसीसी सदर महेश कुमार गौर, वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, वी श्रीहरी और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी से फ़ोन पर राब्ता करके हाई कोर्ट में बीसी रिजर्वेशन केस की समाअत के दौरान खुद दलाइल पेश करने की दरख्वास्त की। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, वज़रा पूनम प्रभाकर और वी श्रीहरी ने दिल्ली पहुंचकर सिंघवी से बिलमशाफा मुलाकात की और हाई कोर्ट में हाजिरी देने की पुरजोर अपील की है। तेलंगाना हुकूमत बीसी रिजर्वेशन के मसले को इंतहाई संजीदगी से ले रही है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में मुकदमा जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। गुज़िश्ता रोज़ पीर को सुप्रीम कोर्ट में बीसी रिजर्वेशन केस की समाअत के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, वज़रा पूनम प्रभाकर व श्रीहरी पर मुश्तमिल टीम दिल्ली पहुंची थी। वहां उन्होंने कानूनी माहिरीन और आला हुक्काम से तफसीली मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत की नुमाइंदगी सीनियर वकला अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दुबे ने की थी। भट्टे विक्रमार्का और वज़रा की टीम भी समाअत के दौरान अदालत में मौजूद रही। 4 शंबे के रोज़ हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को फ़ोन पर अभिषेक मनु सिंघवी से ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने की अपील की। हुकूमत तेलंगाना ने जर्मनी के एक तहकीकाती इदारे HHI के ज़रिए ज़रई शोबे में मसनूई ज़हानत और नई इख्तराई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रियासत भर में वसअत देने का ऐलान किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनअतें श्रीधर बाबू ने इस इदारे के नुमाइंदों और जर्मन सफारतकारों के साथ सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मसनूई ज़हानत से छोटे और मुतवस्सित किसानों को जोड़ा जाएगा, जिससे मनफ़त बख्श ज़रई पैदावार, खाद और दीगर कीमियाई अज्जा के कम से कम इस्तेमाल में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रियासत की मईशत का बड़ा इन्हिसार ज़राअत पर है। आबादी के 55% इस शोबे से जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तेलंगाना आलमी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए ये एक रोल मॉडल साबित हो रहा है। इस इजलास में मौसमी तग़य्युर से पड़ने वाले असरात का भी जायज़ा लिया गया। जर्मनी के इस इदारे की जानिब से विमलवाड़ा के 3 देहातों में मसनूई ज़हानत व इख्तिराई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब इस प्रोजेक्ट को रियासत भर में वसअत दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल फार्मर्स वेलफेयर कमीशन के सदर नशीन M कोदंडा रेड्डी और ज़राअत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सुदूर और आला ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। तेलंगाना के वज़ीर ए लक्ष्मण ने अपने साथी वज़ीर पूनम प्रभाकर की तरफ से उनके खिलाफ किए गए रिमार्क्स को लेकर पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रियासत में पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन को मकतूब रवाना किया है। पूनम प्रभाकर को उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए कल तक का वक्त दिया है। उनका कहना था कि वो जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी को भी पूनम प्रभाकर के रवैये से वाकिफ करवाया जाएगा। बताया जाता है कि पूनम प्रभाकर ने ए लक्ष्मण को बैल के मुमासिल करार दिया था। उनका कहना था कि अगर पूनम प्रभाकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जो भी नताइज बरामद होंगे उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे। ताहम इत्तला मिली है कि सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने इस मामले में मदाखलत की है। उन्होंने पूनम प्रभाकर और ए लक्ष्मण से बात की है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इस मामले को सुलझा लिया गया है। पूनम प्रभाकर ने भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कभी ए लक्ष्मण का नाम नहीं लिया था। गलतफहमी की वजह से ये मामला तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। उन्होंने ए लक्ष्मण से बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया।
ఇక ఆయన ఇప్పటికైనా ఇప్పటికే ఇవాళ నుంచి రేపటి దాకా చూస్తామన్నా. రేపటి వరకు కూడా ఆయన మార్పు రాకుండా ఆయన నేను అనలేదు, నేను పలానా ఆయన పక్కన అన్నా అంటే రేపటి నుంచి జరిగిపోయే పరిణామాలకు ఆయనే బాధ్యత. నేను దీని విషయంలో కూడా మా మల్లికార్జున ఖార్గే గారికి నేను నా ఒక ఆ సామాజిక వర్గంకి వెళ్ళి పుట్టి ఆ సామాజిక వర్గం ద్వారా మనం మంత్రి అవడం గిట్ట మేము చేసినటువంటి పొరపాట, మేము చేసినటువంటి మా దురదృష్టమా, మన ఈ విధమైన అవమానాలు భరించాల్సి వస్తుందన్న విషయం మల్లికార్జున ఖార్గే గారికి, మీనాక్షి మేడం గారికి కూడా నేను ఉత్తరం పంపించిన. ఖార్గే గారికి కూడా తీసుకొస్తా, రాహుల్ గాంధీ గారిని కలుస్తా, సోనియా గారిని కలుస్తా. ఇది నా జాతి ఎంటైర్ నా రాష్ట్ర జాతిని అవమానపరిచింది. నమస్తే అన్న. तेलंगाना के वजीर ए लक्ष्मण के खिलाफ एक और वजीर पूनम प्रभाकर के मुय्यना रिमार्क को लेकर पार्टी में ही नाराजगी देखी जा रही है। ए लक्ष्मण के हामियों ने पूनम प्रभाकर का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया है। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि पूनम प्रभाकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीआरएस कायद साबिक वजीर और रुकन असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि RRR रीजनल रिंग रोड मंसूबे को मरकज में बीजेपी और रियासत में कांग्रेस दोनों हुकूमतें दानिस्ता ताखीर का शिकार बना रही हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि 2015 से KCR इस मंसूबे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर आज तक काम शुरू नहीं हुआ। 7,000 करोड़ के टेंडर 3 बार मुलतवी किए गए, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और जमीन हासिल करने का दावा सरासर झूठ है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने रियल एस्टेट मफाद के लिए नए अलाइनमेंट तैयार की, मगर मरकज को नहीं भेजी। उपलता नारापल्ली फ्लाईओवर और TMS अस्पतालों के काम भी सुस्त रवि का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी मफाद में फौरन RRR के काम शुरू किए जाएं और सियासी बहानेबाजी बंद की जाए। बीआरएस के साबिक वजीर व MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने RTC बसों के किरायों में इजाफे की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि हुकूमत फौरन ये फैसला वापस ले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ख़वातीन को मुफ्त बस सहूलत देकर हुकूमत उनके घर वालों पर दोहरा बोझ डाल रही है। गरीब अवाम के लिए इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। तलसानी ने कहा कि RTC को कानगी हाथों में देने की साजिश हो रही है। कई डिपो प्राइवेट कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं। बीआरएस पार्टी RTC को बचाने के लिए 9 अक्टूबर को चलो बस भवन एहतजाजी प्रोग्राम करेगी, जिसमें KTR, हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी समेत दीगर MLAs मुख्तलिफ इलाकों से बसों में सफ़र करके बस भवन पहुंचेंगे। तेलंगाना बीजेपी के SC मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी S कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद वोट बैंक सियासत के लिए समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आइन के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा किया, मगर अवाम ने उन्हें मुस्तरद करके तीसरी बार बीजेपी को इख्तिदार में लाया। एस कुमार ने कहा कि बिहार और तेलंगाना में कांग्रेस 42% BC रिजर्वेशन का ड्रामा कर रही है, अवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने वजीर पूनम प्रभाकर की ज़ात पात पर मबनी तबसरों की सख्त मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस के वज़रा में न नज़्म है न बाहमी एहतराम। बीजेपी ने वाजे किया कि वो BCs को 42% रिजर्वेशन देने के हक़ में है, मगर मजहबी बुनियाद पर 10% मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालफत करती है। एस कुमार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर कांग्रेस मुखलिस है तो फौरी तौर पर बलदियाती इंतखाबात मुनक्किद करके BCs को उनका हक़ दे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में उनकी पार्टी की उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगी। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि पिछले असेंबली इंतखाबात में हैदराबाद की कई सीटों पर बीआरएस पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। 2 साल में कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद के लिए कुछ भी नहीं किया। आज पैसे देकर इंतखाब जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जुबली हिल्स के राय दहिंदे कांग्रेस की इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने चीफ जस्टिस BR गवई पर मुबैना जूता फेंके जाने के वाक़े को बदबख्ताना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने A लक्ष्मण के साथ पूनम प्रभाकर के तनाज़े पर कहा कि एक दलित वजीर की तौहीन की जा रही है।
जब से तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की हुकूमत बनी है, एक मंदिर में नायब वजीर आला की तौहीन भी की गई थी। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर सबिता इंदा रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत रंगारेड्डी जिले में किसानों की अराजियात पर औकाफ की तरह मंडला रही है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सबिता इंदा रेड्डी का कहना था कि विकाराबाद जिले के किसान परेशान हैं क्योंकि हुकूमत उनकी अराजियात पर कब्जे कर रही है। किसानों को रेवंत रेड्डी की हुकूमत मुसलसल परेशान कर रही है। रियासत तेलंगाना बशमूल दारुल-हुकूमत हैदराबाद की बाज़ मुकामात पर दरमियानी शब के अलावा मंगल की दोपहर से शाम तक शदीद बारिश हुई है। तेलंगाना की नागर कर्नूल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, आसिफाबाद, मंचरियाल, जंगाओं से बारिश की तल्ला है, जबकि आज हैदराबाद की कोकटपल्ली, जुबली हिल्स, मासाब टैंक, आसिफ नगर, राजेंद्र नगर, बहादुरपुरा, एलबी नगर, मलकपेट, सईदाबाद, हयात नगर, बशीर बाग, खैरताबाद, अमीरपेट, नामपल्ली, चार मीनार, हिमायत नगर और दूसरे इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में मजीद बारिश की पेश क़यासी की है। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने फ्रेंडली पुलिसिंग के सिलसिले में अवाम को रास्त उनसे राब्ते का मशवरा दिया है। सोशल मीडिया, ट्विटर यानी एक्स पर सज्जनार वीसी के अलावा इंस्टाग्राम पर वीसी सज्जनार आईपीएस पर अवाम कमिश्नर पुलिस से राब्ता कर सकते हैं और अपनी शिकायत उनसे रुजू कर सकते हैं। चार मीनार और उसके शुमाल में वाक़े 4 मुख्तलिफ कमानों की अदम निगहदाश्त की वजह से मंगल की दोपहर बारिश के दौरान मछली कमान का एक हिस्सा गिर गया, जिससे एक नौजवान जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दी गई। उन्होंने मुतल्लिका रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को जाए वाक़या रवाना किया। उन्होंने नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर के साथ इस मुनहदिम हिस्से का मुशाहिदा किया। मुकामी ताजरीन ने बताया कि मछली कमान की कोई निगहदाश्त व मरम्मत नहीं की गई। दरख्त के उगने से इस कमान के मुख्तलिफ हिस्से मुतासिर हो रहे हैं। दरख्तों की जड़ों के अंदरूनी हिस्से में पेवस्त होने से इसके पत्थर निकल कर गिर रहे हैं। रुकन असम्बली ने इसकी निगहदाश्त करने वाली कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों से बात की। अथॉरिटी के अहदेदारों ने इस कमान की मरम्मत का तयक़ुन दिया। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साबिक मुलाजिमीन ने मंगल को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए दरख्वास्त की है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेलफेयर बोर्ड के क़याम के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें। कायद मजलिस ने साबिक मुलाजिमीन के मसाइल की समाअत करते हुए इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। साबिक मुलाजिमीन ने कायद मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। जहानुमा डिवीजन में 63 लाख रुपए की लागत से वीडीसीसी और सीसी रोड बिछाई गई। रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि याहिया होटल से चिराग अली नल तक वीडीसीसी रोड बिछाई गई, जबकि मिसरीगंज काला पत्थर इलाके में सीसी रोड बिछाई गई। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर मज़कूरा कामों को मंजूर किया गया है और उन्होंने फौरी तकमील करवाने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में हल्का असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने जीएचएमसी के अहदेदार महेश के हमराह एमएस स्कूल मल्लेपल्ली के पास जारी वीडीसीसी रोड के कामों का मुआयना किया। मज़कूरा इलाके मल्लेपल्ली डिवीजन के वार्ड नंबर 76 के तहत आता है। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। तारीखी चार मीनार में वाक़े छिल्ला मुबारक हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से सालाना जुलूस निशान मुबारक बरामद हुआ। मोतमद उमी व साबिक़ रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी की ज़र निगरानी ये जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, एतबार चौक, कोटले आलीजा से होता हुआ दोबारा चार मीनार पहुँचा। सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंद इस जुलूस और फातिहा में शामिल रहे।
रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बराला और दीगर कई मोअज़्ज़िज़ीन इसमें शरीक रहे। मुतवल्ली छिल्ला मुबारक मेराज शरफ़ी ने निशान मुबारक इस्तादा किया। हर साल 11वीं शरीफ के मौके पर चार मीनार से निशान मुबारक बरामद होकर फिर इसी मुकाम पर इस्तादा किया जाता है। साल भर अक़ीदतमंद ज़ायरीन बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत छिल्ला मुबारक में हाज़िरी देते हैं। हैदराबाद के कोंडापुर और कोकटपल्ली में एक साथ इनकम टैक्स के धावे हुए हैं। बताया जाता है कि कोंडापुर में अपर्णा हाउस में मुकीम वेंकट रेड्डी के मकान पर आज सुबह धावा किया गया। कोकटपल्ली में भी धावे की तल्ला है। वाज़ेह है कि टैक्स चोरी के मामले को लेकर हालिया चंद दिनों के दौरान इनकम टैक्स की तरफ से धावे किए जा रहे हैं और इसे भी इसी सिलसिले की एक कड़ी बताया जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के जंगलाती इलाके में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब हुई है। महलूक की शनाख्त हबशीगुड़ा PNT कॉलोनी के साकिन मोहम्मद ख्वाजा की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि ख्वाजा गुज़िश्ता 4 दिनों से लापता था। मुकामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी हैं। SOT माधापुर ने चंदानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 45 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि विशाखापट्टनम से गांजा हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। 3 अफराद बशमूल 2 ख़वातीन पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने NDPS के तहत केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद बाचुपल्ली की साई अनुराग कॉलोनी में AC में हुए धमाके से एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गईं। इब्तिदाई तल्ला के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा पेश आया है। AC में धमाके के फौरी बाद आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले और हाइड्रा को भी तलब कर लिया गया था। मुतासरा खातून की हालत नाजुक बताई गई है। कानगी दवाखाने में उनका इलाज जारी है। हैदराबाद के सनत नगर में घरभरानी की तकरीब में डेकोरेशन लाइट से शॉक लगने पर 8 साला बच्ची फौत हो गई। बताया जाता है कि उदयनगर कॉलोनी में श्री रामलू के नए घर के लिए तकरीब मुनक्किद हुई थी। अचानक 8 साला लड़की मेघना डेकोरेशन लाइट्स के तारों की जद में आ गई। इसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ताहम डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। त्यौहार का घर मातम में तब्दील देखा गया। तेलंगाना सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद मंडल जलगोड़ा के गुरुकुल स्कूल में 8वीं जमात के तालिब इल्म की मुश्तबा मौत का वाक़या भी पेश आया है। बताया जाता है कि मुतवफ़ी तालिब इल्म के वालिद ने सुबह उसे स्कूल छोड़ा था। टीचर्स का कहना था कि खेल के दौरान विवेक के गले में रस्सी फंस गई, इसी वजह से उसकी मौत हुई है। ताहम मुतवफ़ी के वालिद ने इस वाक़े पर शुबहात का इजहार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तेलंगाना के टोपरान से मिर्चल जाने वाली स्कूल बस से बोलेरो गाड़ी टकरा गई। इस वाक़े का भी CCTV सामने आया है। बताया गया है कि स्कूल बस यू टर्न ले रही थी। तेज़ रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने उसे टक्कर दे दी। इस वाक़े में बाज़ बच्चे मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। गाड़ी में तकरीबन 20 तलबा सवार थे। पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और
शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी राहत की उम्मीद। अभिषेक मनु सिंघवी से हाई कोर्ट में दलाइल पेश करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला का जायजा इजलास, 4 शुंबे को समाअत। कांग्रेस के 2 वज़रा में ठन गई। पूनम प्रभाकर ने ए लक्ष्मण को बैल कहा। मसले को सुलझाने PCC सदर की मसाई। दलित कायदीन के साथ कल इजलास। RTC शरहों में इजाफे के खिलाफ BRS के एहतजाज का ऐलान। 9 अक्टूबर को चलो बस भवन प्रोग्राम। T श्रीनिवास यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घर बरानी की तकरीब में डेकोरेशन लाइट्स के तारों की जद में आकर 8 साला बच्ची फौत। खुशी का मकाम मातम में बदल गया। और 4 दिनों से लापता नौजवान की OU कैंपस में मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।